Hello everyone, welcome back once again. So I hope you are doing well. So in this video we discuss what? Some question based on linear differential equation. In previous classes we also discussed the differential equation which is based on linear differential equation. So this is a different question. Here you can see what is the value of P and Q, and we can find integrating factor and then we solve its solution. Okay, so let me write here first. How you can write solution? So given that what is dy by dx minus 2y is equal to cos 3x. Cos 3x is the function of x, that is the value of q, which is different related to in polynomial or trigonometrical function. Doesn't matter. Only here matter is function of x only or constant. So this is the function of x. So no doubt we can write here dy by dx plus minus 2y is equal to cos 3x, which is in the form of LDE. So you can write here which is in the form of LDE means linear differential equation, dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to minus 2, q is equal to cos 3x. So this is the basic. Here we write the value of what? P and q, and in the form of LDE, p and q be the function of x only or constant. Here p is a constant but q is the function of x. So no doubt. And now we want to write here, so integrating factor is equal to e raised to power integration of p dx. So what is e raised to power integration of minus 2 dx? We can write minus 2 dx, yani e raised to power minus 2x is the integrating factor of the given differential equation. What is e raised to power minus 2x is the integrating factor of the given differential equation, and now we want to write its solution. So how you can write? So the solution of given equation is given by what is y into integrating factor is equal to integration of right hand side, that is q, integrating factor dx plus c if y is a dependent variable. Okay. Now here we want to substitute the value of integrating factor. So y into e raised to power minus of 2x is equal to integration of q, that is cos 3x into integrating factor e raised to power minus 2x dx plus c. Okay. So this is the basic. Now, and we can write integration of e raised to power minus 2x cos 3x dx. Why we write in this way? अच्छा, हमने इसको इस साइड लिखा है, इसको उस साइड लिखा है. Why? In integral chapter, this is the, if we have any exponential function and trigonometrical function, so first function here we write what? Exponential, then we write trigonometry. Okay. Now here we want to integrate. इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? Can we integrate this function? Here we write integrate this function only if we let I. It means इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे इंटीग्रेशन में ये खुद ही आ जाएगा. ठीक है.
तो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसके इंटीग्रेशन की वजह से। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता था और हम आंसर लिख पाते थे, बट here we cannot write integration in simply, but we write integration here. So let this is the equation number 1 now, or you can write let I is equal to integration of e raised to power minus 2x cos 3x dx, and now here we want to integrate, here we want to integrate this I means what? Integral. कैसे लिखेंगे अब देखिए। सो वी नो दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सो फर्स्ट वी राइट फर्स्ट फंक्शन दैट इज e raised to power minus 2x and integration of second function that is cos 3x, and we know that, or you can write in a simple way how, here we write one line extra that is integration of cos 3x dx minus whole integral d by dx of first function that is e raised to power minus 2x and integration of cos 3x dx again dx plus c। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया है जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना हो कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है इफ़ cos x we have integration of cos x, what is sin x simply, but if any constant here multiply in x, so in last we divide with this multiplication constant. It means we write here e raised to power minus 2x and integration of cos x as we write here sin 3x, but at the place of x here 3x, so 3 is a multiplication constant in x, so we divide by 3 minus, so this is the integration of cos 3x, ठीक है। अगला क्या है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस 2x। e टू द पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव जो है वो तो रहेगा, ठीक है, यानी e रेज़ टू पावर माइनस 2x तो होगा ही होगा, साथ में x में जिसका मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, डेरिवेटिव में, इट मीन्स माइनस 2। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन, हियर वी राइट आल्सो, सो साइन 3x अपॉन 3 dx प्लस c। यहाँ इसमें कोई डाउट है क्या, एनी डाउट इन दिस लाइन? Here we write e to the power minus 2x first function and integration of second function minus derivative of first function that is e to the power minus 2x. So e to the power x as it is, but here multiply in x by 2 minus 2, so we write in multiplication in the case of derivative, but in the case of integral here we divide. Okay, now next line is what, 1 by 3 e to the power minus 2x sin 3x minus what, here we write minus 2 ये by 3, so we write here plus 2 by 3 integration of e to the power minus 2x sin 3x dx plus c। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ये 2/3 को हमने बाहर लिख दिया है और ये साथ में मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन जैसे ही आप अगेन ब्रेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से, सो ये आई स्वयं ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का एक ही मोटिव है कि आपको ये भी पता हो कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, अगर ऐसा आया है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल चैप्टर में भी इसको डिस्कस अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है, तो वो भी कराया जाएगा आपको। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। एंड नाउ नेक्स्ट लाइन विल बी व्हाट, इधर लिखता हूँ
ये आपने लिखा होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसके आगे मैं इधर लिखता हूँ। I is equal to 1/3 e raised to power minus 2x sine 3x plus 2/3, and now integration of this function, so we can write here first function and integration of second function, so we write integration of sine 3x. sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? निगेटिव में, ठीक है। सो वी राइट हियर व्हाट इज cos 3x अपॉन 3 बट निगेटिव, सो वी राइट हियर निगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ गया? निगेटिव क्यों होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स निगेटिव में आता है, ठीक है। माइनस व्हाट? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो वी कैन राइट हियर e raised to power minus 2x minus 2 and integration of this, so cos 3x. how we can write? I think here we need more spaces, ठीक है। तो इस पे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बड़े में लिखते हैं पहले। चलिए यहाँ से लिख देते हैं इसको। ये इक्वेशन 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सब आपने लिखा होगा। तो अगली लाइन में हम यहाँ लिखते हैं पहले कि कैसे हम लिखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से हमें लिखना होगा I इज इक्वल टू 1/3 e raised to power minus 2x sin 3x plus 2/3 first function, integration of second, so we can write here cos 3x upon 3 with negative sign minus integration of derivative of first, so e raised to power minus 2x and minus 2 integration cos 3x upon 3 with negative sign। ओके, समझ में आ गया कहाँ से हो रहा है ये? ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पर dx है प्लस व्हाट? हाँ ठीक है, प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताइए। देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। एक, हाँ यहाँ से कैसे क्या करेंगे? 1/3 e raised to power minus 2x sin 3x, here we want to open the bracket, what is, देखिए ये क्या है? माइनस है, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये 2/3 है, 1/3 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 2/9 e raised to power minus 2x cos 3x, ठीक है। अगली लाइन में देखिए यहाँ पर क्या है? ये निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, बट बाहर निगेटिव तो वो निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2/3 निकल रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर 2/3 है, सो वी कैन राइट विद नेगेटिव साइन 4/9 इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power minus 2x cos 3x dx प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सिंपली हमने ये लिखा है, ठीक है। देखिए ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, नो डाउट लगेगा, तो लगना चाहिए, उसमें क्या है। चलिए अगली लाइन। अब देखिए ये क्या है? I की वैल्यू है, यही तो हमने I माना था, e to the power minus 2x cos 3x, यही आ गया, ठीक है। तो अगली लाइन आपको लिखना है I इज इक्वल टू
1/3 e रेस टू पावर -2x साइन 3x माइनस 2/9 e रेस टू पावर -2x कॉस 3x माइनस 4/9 i प्लस सी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, i प्लस सी। अब i इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो इसको आप इस साइड ले आएंगे, यानी क्या मिल जाएगा, i प्लस 4/9 i इज इक्वल टू वाट, 1/3 e टू द पावर -2x साइन 3x है, देखिए यहाँ 3 छूट रहा है, साइन 3x माइनस 2/9 e टू द पावर -2x cos 3x प्लस सी। ये तो इस साइड चला गया। अब देखिए 1 + 1 4/9 करेंगे तो यानी 13/9 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 13/9 i इज इक्वल टू 1/3 यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर i को फ्री करिए, यानी i को जैसे ही फ्री करेंगे यहाँ से, यानी i इज इक्वल टू वाट, ये 9/13 इस साइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9/39 होगा कि नहीं? कैसे होगा, नहीं होगा, कैंसिल भी होगा कुछ, तो कैंसिल करके लिखते हैं, या ऐसा करते हैं पूरा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत, अगली लाइन में कैंसिल कर देंगे। देखिए इस साइड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/13, मल्टीप्लाई भी करते रहिए, इंटू 1/3 e रेस टू पावर -2x साइन 3x माइनस 9/30 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, 9/13 इंटू 2/9 e रेस टू पावर -2x cos 3x प्लस सी। सी में भी मल्टीप्लाई होगा, वो भी ध्यान रखिएगा। क्या है ये, 9/13 सी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 3 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, यानी वी कैन राइट 3/13 e रेस टू पावर -2x साइन 3x। यहाँ से देखिए ये 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, -2/13 e रेस टू पावर -2x cos 3x प्लस 9/13 सी, 9/13 सी। ये हो गई वैल्यू आपकी i की। ठीक है, अब आप यहाँ से अगली लाइन लिखेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, हियर यू कैन राइट यूजिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1 वी गेट। क्या मिलेगा हमें यहाँ से अगर करेंगे तो, वैल्यू को रखिए, सीधा आंसर मिलेगा। और क्या हमें चाहिए, हियर वी वांट टू फाइंड आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ के बाद आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, इधर नहीं जाना है। y इंटू ई टू द पावर -2x इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, ये पूरा आपको लिखना होगा, 3/, एक सेकेंड, जैसे हमने i ले लिया था। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर c तो लिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर हमें c नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ अगर हमने c लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, बट c को नहीं लिखिए, क्योंकि एक जगह हमने c ले लिया है तो बाकी जगह हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे भी जहाँ जहाँ था उसको आप छोड़ दीजिएगा, उससे कैलकुलेशन में सिंपली रहेगा वो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको करेक्ट करिएगा। ये प्लस c को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या रहेगा ये, ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसको रख करके हम C1 कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब आइए
क्या है ये 3/13 e टू द पावर -2x साइन e टू द पावर -2x साइन 3x -2/13 e टू द पावर -2x cos 3x। ठीक है, ये है प्लस सी। ये क्या आ गया y, इस फंक्शन का जो ये दिया हुआ था इसका सोल्यूशन आ गया आपका y e टू द पावर समथिंग, एंड अगेन वी राइट 3 2। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्या है यहाँ से y इंटू e टू द पावर -2x। यहाँ से अगर हम e टू द पावर -2x दोनों जगह पे, यहाँ भी है यहाँ भी है, अपान 13 को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ देखिए ये चला गया बाहर, ये चला गया, बचा क्या 3 sin 3x माइनस e टू द पावर -2x चला गया, 13 भी गया, यानी -2 cos 3x प्लस सी। और यही है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आपको डिस्कस इसीलिए किया गया था कि यहाँ पर जो आया विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसीलिए डिस्कस किया गया था कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया जिसमें इंटीग्रेशन इस तरीके से आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई नहीं, यहाँ पर जो भी आपको कराया जा रहा है इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, बट आप इसको कंटिन्यूसली देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछिए ज़रूर। कैसे पूछेंगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करिए, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी वांट टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम होंगे, कोई डाउट नहीं। देखिए क्या है कि अगर एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आप टाइम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाते रहिए, उससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है जिसको हम डिस्कस करते हैं, और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टाइप का है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशन दे दिया रहता है और उसमें लिख देगा सीधा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और वहाँ से क्या है इसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वो कंडीशन देता है। ठीक है, आर.डी. शर्मा बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है। हम चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दे, जिससे अगर आपको आप उस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे कि आपने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी सॉल्व। आप इसको लिख रहे होंगे, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर उसके बाद वॉच करिएगा, और आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, फिर उससे कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन इस बार करने जा रहे हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बस वही y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से फिर c की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो नोट आउट किया जाएगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि क्वेश्चन दिखने में काफ़ी हैवी लगता है, कितना बड़ा है। अगर आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए तो देखने से लगेगा इतना बड़ा है, कैसे लिखे। नहीं, थोड़ा सा वक्त दो तो सही उसे। और आपको पता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप वक्त देंगे तो वो आपका ही होगा। ठीक है, अगर आप इस पढ़ाई में वक्त दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं, हवाई पढ़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए अगर कोई भी ये टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको वक्त तो देना पड़ेगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस। ठीक है, फार्मूले को समझना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप रट नहीं सकते।
अब अभी जो हमने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, क्या आप इसको रट सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। बट आपको प्रोसेस पे वर्क करना होगा, और वर्क क्या कहता है, हाउ यू कैन वर्क ऑन द प्रोसेस, सो प्रैक्टिस, सॉल्व अनदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, so you can learn everything about how you can solve this type of equation. So let me write one question in this video more. So that is 1 plus x square dy by dx, 1 plus x square dy by dx plus 2xy plus 2xy minus 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है y एट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब ये कंडीशन क्या कहता है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आएगी, बस, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये किस फॉर्म का नहीं है, ये कैसा दिया हुआ है। पहली बात देखिए, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा, इफ़ यू सी एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, सो फर्स्ट यू थिंक कैन वी सेपरेट ईच वेरिएबल्स, इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या हम इसमें एक्स वाई को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या ये होमोजीनियस में जाएगा? अब नहीं कर सकते तो वेरिएबल सेपरेबल फेल हो गया, ठीक है। क्या यहाँ से dy बाई डी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, होमोजीनियस फॉर्म में? देखिए dy बाई डी अगर इधर है, इसको उस साइड करेंगे तो यहाँ पर डिग्री तो दोनों का 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट ये 1 है, तो वहाँ 1 के लिए डिग्री क्या है, 0 है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए आपके पास ओनली देयर आर 3 मेथड, दैट इज़ वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर। सो वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, होमोजीनियस में होगा नहीं, तो होगा क्या, लीनियर। अब लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन द above इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते हैं आप, dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं, कैन वी राइट इन दिस वे, क्या हम लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे वो देखिए, इसको हमने पहले ही उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया और इससे हर एक में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एज इट इज़ लिखेंगे, इधर भी डिवाइड करके हमने लिख दिया। अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ LDE वेयर द वैल्यू ऑफ P Q, ठीक है। सो यू कैन राइट नेक्स्ट लाइन, दैट इज which is in the form LDE, that is linear differential equation, ठीक है। आई थिंक ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। which is in the form of LDE, क्या है फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। अब देखिए दो बातें होती हैं, कभी कभी क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स के लिए लिखेंगे तो LDE बन जाता है, कभी कभी नहीं भी बनता है, तो उसको dx अपन dy करेंगे। इसके पिछले 1-2 वीडियो में आप चेक करिएगा, मैंने क्वेश्चन उसको सॉल्व कराया हुआ है इसीलिए, ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा। वेयर p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू रख लिया p का, q का, and now what is the task is here we want to find integrating factor, okay. So now integrating factor is equal to
dx, and how you can write e raised to power integration of 2x upon 1 plus x square dx. आप अगर ध्यान से देखिए, if we let denominator that is 1 plus x square is t, so when we integrate, so we have 2x dx is equal to dt. So integration we can write directly here, e raised to power log 1 plus x square, and you can see here you can write e to the power log x. So we have 1 plus x square is the integrating factor. ठीक है, अब here we have integrating factor. So what is the next task? Next ये है how you can write solution. So the solution of the given equation can be written as, so the ये ऊपर है देखिएगा, so the solution of given equation is given by, फार्मूला क्या है, y into integrating factor integration of q integrating factor dx plus c. ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इट मीन्स हियर वी राइट 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वी राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज आल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c. ठीक है, वैल्यू को हमने रखा है, कुछ किया नहीं है अभी तक. Here we only substitute the value of integrating factor, and now here you can write 1 plus x square 1 plus x square. ठीक है, next line we write here integration of 4x square dx plus c, and we can write 4 integration of x square dx plus c 4x cube by 3, so we can write in this way. यहाँ तो कोई डाउट है क्या, हमने यहाँ रख दिया, ये क्या है y इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. नाउ द गिवन कंडीशन इज, नाउ द गिवन कंडीशन क्या है, y at 0 equal to 0, so here we substitute x equal to 0 and y equal to 0. If we put here y is equal to 0, so left hand side becomes 0, and in right side x equal to 0, so only c, it means so c is equal to 0. ठीक है, hence y 1 plus x square is equal to 4 by 3x cube x cube. ये है, ये क्या है आपका, ठीक है, ये सोल्यूशन मिल गया. बट हियर वी राइट y इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज हियर आल्सो वी कैन राइट, दिस इम्प्लाइज है, ध्यान रखिएगा, y is equal to what, 4x cube upon 3 1 plus x square. यही आएगा, कुछ और आएगा. ठीक है, यही आपका आंसर हो गया. देखिए प्रोसेस अगर आपका सही है सो आंसर डिफ़र नहीं करेगा. डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर डिफ़र हो सकता है बट प्रोसेस नहीं. अगर आपने प्रोसेस सेम फॉलो किया है तो यहाँ पर आंसर डिफ़र आएगा ही नहीं. ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे. अब देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको क्या लगता है ना कि एग्ज़ाम में यही दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए. अब देखिए y 0 इज इक्वल टू 0, हमको यही रखना है, यानी हियर वी वांट टू फाइंड. अच्छा एक चीज़, इक्वेशन नंबर 1 को क्या कहेंगे,
general solution or particular solution? So question 1 is general solution, and this is the particular solution, because in general solution constant available. If a solution containing constant, so you can say this is general solution, but if not containing any constant, so particular solution, singular solution. ठीक है. So I think आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. If you have any query, so you can comment in comment box. And now we will meet in the next class with the your exercise solution of NCERT. Okay. Here we discuss some question from D. Sharma and NCERT example something. But in next video we solve your exercise 9.4, 9.5 according to new syllabus. Okay. So keep watching, keep learning. Now we will meet in the next class. Thank you very much. Thanks for watching.